Silence. Yeah, recording. Okay, hallelujah, praise the Lord. God is good. Yeah, God is good, hallelujah. Wow, मेरे ना भी आज है बहुत दिनों के बाद, हालेलुया. और आने वाले हैं, शायद रास्ते में है, कई लोग के और है आने वाले हैं. ओके, प्रभु अच्छा है. Let's give glory to God. Such much wonderful worship रहा प्रभु की उपस्थिति में. Yeah, we had a wonderful presence of God in the worship. With open heart and mind, we've been worshiping the Lord. Hallelujah. Prabhu bahut acha hai. God is so good all the time. And then, Kushi, our youngest, powerful chairman today's service, as his mighty preacher. Yeah. Deep revelation from God. Serious, keep on receiving. Deep things of God is now revealing to her. God has started revealing to her. She is becoming greater and greater. I don't know. No, I know, but she is a great. She is going to be a great, mighty preacher, great businesswoman. Hallelujah. So let's thank God. हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. हालेलुया. प्यारे प्रभु जी, thank you Lord, wonderful given us a wonderful time Lord. Hallelujah. So happy. So you are working Lord behind the scene also Lord, in spiritual realm Lord. You are working so wonderfully Lord, because you cares for us Lord, because you are always thinking for us, for your people, for all of us Lord. Hallelujah. You're so wonderful, because you have said, I know the thoughts I have for you, to give you peace, not to harm you. See, Lord, thank you Lord, we have wonderful Father, Daddy, you are wonderful Daddy, not like our earthly daddy, but you are wonderful, you are creator of heaven and earth. You have the whole power and the authority in heaven and earth. You are a creator. You still creating things, creating our present and future. You are healing. You are equipping. You are quickening our mind, our hearts, our bodies, Lord. Hallelujah. All the time, day and night, you are Emmanuel, hovering upon us, quickening us, hovering upon us, Lord. Hallelujah. As we put our thoughts in you and you, Lord, the very moment you, yes Lord, start working, quickening us, Lord. How great that was, Lord. Thank you Lord for opening our hearts, opening our mind today, as we worship you Lord. And now we are going to worship you through the Word of God, sharing Word of God, listening the Word of God. We are ready to get deep things, deeper and deeper, to go together with you, Lord, and move in the Spirit, Lord, and rule and reign in the Spirit world, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for filling us with the hope of glory, righteousness. Hallelujah. Thank you, Lord, for your sanctification, justification, for redemption. Hallelujah. Jesus, you have become our wisdom, Lord. Worship you, praise you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, we have lots of time. Yeah, प्रभु बस भी है ना. हाँ, उसके लिए 10 minutes रख देंगे. चलेगा. Always pastor जब ना anointing में आ जाता है. David जैसा ना. When the Spirit of the Lord moves within, I will sing like David sing, na? I will cry, I will weep like David. Okay, बहुत अच्छा. So, yes, today I just, it's all about our faith, all about our faith, all about our faith. So, विश्वास, everything depend upon आपका विश्वास, your heart, your thinking. Everything depend upon, because the blessings, everything blessings of heaven. Your spirit is already created, new creation. You are born again spirit. You are having born again spirit.
Our spirit was dead in sin, now resurrected in Christ Jesus together with Christ, quickened together with Christ Jesus, being seated in heavenly places. Now your spirit is already in heaven. Your spirit is new creation. Say, my spirit is new creation. So I am new creation. I am born again. Say, I am born again. Your body is not born again. Remember, your mind is not born again, but your spirit is born again. बोले, your spirit is born again. जोर से बोलिए. Your spirit is born again. My spirit is born again. See, देखिए. तो blessing, how does the blessing flow? Come to our body, come to our world, our home, our generation. How does the blessings of come? See, Bible कहता है, Bible talks about the blessings. We are blessed with all the spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. कहाँ पर था ये? एफिसिया 31 है ना? अब मैंने अभी just remembered about it, but I don't know. 31 होगा? शायद I may be wrong, but I just remembered. Okay. हाँ correct. पढ़ दीजिए ना अच्छा से. मैंने स्पीड में बोल दिया. Ephesians 1:13. Ephesians chapter 1 verse 3. All of us understand English very good. It's a very English service we are having. Please पढ़ दीजिए. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. In Christ, देखिए, in heavenly places देखिए, in Christ. Our Bible बोलता है, Bible talks about you are quickened together. I have been quickened together. You have been quickened together with Christ Jesus. Now Christ Jesus is resurrected together with us, taking us and blessing us with Him in heavenly places. Now we are blessed. Bible talks about we have been blessed already. Say, I am blessed. See, you are blessed. I am blessed there. That's why I am blessed. You have to say, I am blessed all the time. All the time. You have to confess that. You are blessed. I am blessed. Because you are there with Christ Jesus. So you are blessed with all the heavenly blessings, with all the spiritual blessings. In heavenly places, all heaven's blessing has come. Where? There in the spiritual realm, in heavenly places, where you will be seated with Christ Jesus. देखिए कितना धन्य है आप. So now, in the spirit realm, you are born again. You are there in the glory. बोले, I am there in the glory. इसीलिए आप जब प्रभु को बोलते हो ना, आपको ये जो परमेश्वर ने किया, you are agreeing with Him. You are agreeing with the word of God. So heaven is happy. हालेलुया. इसीलिए तो इस चर्च में आना चाहिए. I am not joking. I have anointing to speak that. Okay, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, YouTube में डालेंगे. Okay, सब लोग हमारा हासा, आपका हासा सब जाएगा वर्ल्ड में. हिंदी समझने वाले, इंग्लिश भी हम बोल रहे हैं. Now English people also, many are following us in Facebook. Okay, so your spirit is born again. You are there. God has done it. You have not done it. You have just agreed with the word of God. That's all. So now, be there. Bible बोलता है, be there. Let your mind be there. Where you have been quickened together, you have sit together. You, by Paul says in Colossians 3:2 or 1:3, just you are there. Let's set your mind, set your affection there. उसको प्रेम करो, विश्वास सिर्फ न करो, ये but be there. Meditate, get delighted in meditating this the word of God. वही Psalms में भी बोलता है, Psalms 1 में भी the same thing is that get delighted to study the word of God. Then blessings, blessing after blessing, blessings after blessing. लोग संसार के लोग ये blessing पाने के लिए पागल है. इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, blessing पाने के लिए. वो जानता नहीं blessing कहाँ है. blessing परमेश्वर के वचन में है. जब स्टडी करेंगे ना, जब मेडिटेट करेंगे ना, वर्ड ऑफ गॉड में है. वर्ड ऑफ गॉड में भी हो, हम लोग वर्ड ऑफ गॉड बोलेंगे. मैं दिस वीक आई हैव बीन शेयरिंग ईडन गार्डन में देयर वाज 2 टाइप्स ऑफ ट्री ना, 2 पेड़ था. देयर वर 2 ट्रीज. सबको मालूम है
क्या था ईदन बगीचे में, ईदन गार्डन ऑफ ईदन में? व्हाट आर द दोस 2 trees? इसलिए तो 4 घंटा होना चाहिए हमारा चर्च। तो ये क्या था? बुराई और भलाई का, नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, सिर्फ गुड नहीं बट इविल ऑल्सो, नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल का 3 जो आदम ने खाया। अनदर 3 वाज देयर जिसको आदम ने नहीं खाया, ट्री ऑफ लाइफ, बोले ट्री ऑफ लाइफ। देखिए अभी वो है जेनेसिस में ना, एक में, बाद में घर में पड़ेगा, अभी नहीं। तो बाद में इधर आता है जब यीशु मसीह क्या लेके आया, बोलता है यीशु मसीह ग्रेस एंड ट्रूथ को लेके आया। ही ब्रोट द ग्रेस, ही ब्रोट द ग्रेस फ्रॉम हेवन, ही इज द ग्रेस, ही इज क्विकनिंग स्पिरिट, जीसस क्राइस्ट। जब वो मुर्दों में से जी उठा, जब वो क्रूस पर चढ़ गया, इट इज फिनिश्ड बोल दिया, सीधा कर दिया, उसके लहू पाया, सारे पापों को यीशु पिता ने यीशु को दे दिया, पुनरुत्थान हो गया। आफ्टर द शेडिंग ऑफ ब्लड, हिज ब्लड ऑफ जीसस, द इटर्नल ब्लड, फादर स्टार्टेड द न्यू टेस्टामेंट। उस ट्री ऑफ लाइफ को फिर से यीशु मसीह ने लाया। Tree of life. This is the grace, law and grace. Law is what? पुराना नियम में जो आदम ने फल खाया वो लो है, अच्छा और बुरा है, good and evil, knowledge of good and evil, knowledge of good and evil। इसको आप ज़्यादा सोचेंगे तो मास्टर बन जाएंगे, नहीं सोचेगा क्या है ये। आज बड़ा पास्टर लोग भी इसको समझने की कोशिश नहीं करता, बोलते हैं मेरे पास होली स्पिरिट है, आत्मा बचाते हैं हम लोग, इसी में खुशी होना चाहता है। ये लोग कुछ सीखना नहीं चाहता है, सोचता है हम लोग सीख गया, नया बात कहाँ से लेता है। अरे नया बात हम थोड़े बाइबल के बाहर चला रहे हैं। दिन में एक बगीचे में 2 पेड़ था, वो ना अच्छाई बुराई का ना, द ट्री ऑफ गुड एंड इविल, नॉलेज ऑफ गुड इविल, और ट्री ऑफ लाइफ है, बाइबल में है। तो जॉन 1:17 में बोलता है, पढ़ फिर से पढ़िए, नहीं तो फिर माइका पास्टर कहाँ से बोल रहा, बाहर से बोल रहा होगा, बोलेगा ना। यू ट्राइंग टू, मैं बहुत आज शेयर करना चाहता हूँ, प्रभु की उपस्थिति है ना, बहुत कुछ प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है, abundance of blessing शेयर करना चाहता हूँ। Let me try, जल्दी से पढ़िए 1:17। For the law was given through Moses. For the law was given through Moses. But grace and truth came through Jesus. बस grace and truth came Jesus Christ, through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा आया। So he brought the same 3, grace को लाया। Grace ही सत्य है, grace is the truth, truth is the grace। और इस grace को, इस grace and truth को जो जानेगा वो आजाद हो जाएगा, कंफ्यूजन से बाहर निकलेगा, इधर उधर दौड़ने से बंद हो जाएगा, रिलैक्स होगा आत्मा में, शांति, नथिंग मिसिंग, नथिंग ब्रोकन, परफेक्ट पीस आपकी जिंदगी में आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप इस विश्वास में होंगे, इसमें होंगे, इस सत्य को जानेंगे, परफेक्ट पीस आपके अंदर रहेगा, कोई पावर आपको नहीं हिला पाएगा। ये भी कहा है, मैं पुराना नियम से आपको बताऊंगा, आइजिया 26 का 6, इसको पढ़िए, आइजिया 26 का 6, देखिए परफेक्ट पीस बोलता है प्रभु। वो परफेक्ट पीस परमेश्वर ने नया नियम में यीशु ख्रिस्त के द्वारा वो परफेक्ट पीस लेकर आया। देखिए पुराने में भी परमेश्वर ने वो वादा किया, सपना देखा, मैं ये लेकर आऊँगा ना, मेरे लोगों को ये पूरा परफेक्ट पीस दे दूंगा। अगर आपकी ज़िंदगी में पीस नहीं है, यू हैव लॉस्ट दैट पीस। तो देखिए कुछ गलत ट्रैक में अगर होगा तो यू हैव लॉस्ट ऑल द पीस। तो ना आपको रिपेंट करना जरूरी है ना, सही ट्रैक में आना। देखिए पढ़ दीजिए इसको, 26 का 6 ना, am I correct? Yeah, please. Lord, you will establish peace for us, for you have also done all our works in us. All our works in us, because perfect peace लेकर आएगा। So ना परफेक्ट पीस परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर आपको परफेक्ट पीस देता है। जब आपके पास धार्मिकता है, यू हैव परफेक्ट पीस।
इफेक्ट ऑफ राइचियसनेस इज पीस। इफेक्ट ऑफ राइचियसनेस, ये भी कहाँ पर है ना, पुराना नियम ही है ना, मैं निकालूंगी आप निकालेंगे। फाइल समवन परफेक्ट पीस, इफेक्ट ऑफ राइचियसनेस इज परफेक्ट पीस। देखिए किसी को मिला है, देखिए इफेक्ट ऑफ राइचियसनेस इज परफेक्ट पीस। इसको हम लोग निकालते हैं और उसको हम लोग ना टीचिंग को शुरू करते हैं। मिला? ओहो मिला? इफेक्ट ऑफ परफेक्ट पीस मारिए गूगल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 26 में पढ़ा हम लोग ना, 27 में जाइए तो आई जाए 27 में। मिला? 26:3 में, हाँ पढ़िए। ओके, यहाँ पर मैं 32 का 17 में पढ़ता हूँ। देखिए 32 का 17 में जो मैं बोल रहा हूँ शायद इसमें होगा। आइज़ा 32 का 17 देखिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ नया नियम में जाएंगे है, पुराना नियम को छोड़ दिया, ये लोग पढ़ता नहीं है बोलेंगे ना, इसलिए हम लोग पुराना नियम से भी पढ़ रहे हैं। हालेलुया, आमेन। बी इन द स्पिरिट, आप लोग आत्मा में रहिए, शिक्षा को लीजिए, दिमाग में मत सोचिए। राइट नाउ अभी बी इन द स्पिरिचुअल रिम। पढ़ दीजिए 32 का 17। The work of righteousness will be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Assurance forever, quietness and assurance forever. Right? Effect of righteousness is peace, complete peace, quietness and righteousness forever. ये है नया नियम। This is the New Testament. This is the power of the blood of Jesus. बोले, this is the power of blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, nothing to worry. जिंदगी में आपको वरी करना नहीं है। स्टॉप वरिंग, टाटा बाय बाय कर दीजिए वरी को। जब तक लेट इट गो ना, आप नहीं जाने दे सकता है तो वरी आपको ना अधिकार करता रहेगा। देखिए नया नियम इतना पावरफुल है, ये ग्रेस एंड ट्रूथ इतना पावरफुल है, वो आपको आजाद कर देता है, परफेक्ट पीस देता है। अगर परफेक्ट पीस नहीं है, समथिंग इज मिसिंग, देन वो परफेक्ट पीस नहीं है। यू आर नॉट इन द ना, आपको नॉलेज, लैक ऑफ टीचिंग, लैक ऑफ नॉलेज, पीपल पेरिश। देखिए लोग नाश होता है सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, लैक ऑफ टीचिंग, शिक्षा की कमी की वजह से नाश होता है, बाकी कोई दूसरा पाप की वजह से नहीं बोला बाइबल। पाप की वजह से नाश हुआ। हाँ तुम्हारा पाप है इसलिए परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया बोलता है आइजिया 59 में ना 4 में, your God's hand is not shortened because your sin has made God's hand shortened. परमेश्वर का हाथ को आपने छोटा कर दिया, परमेश्वर आपको मदद नहीं कर सकता क्योंकि आपके पाप है। It's the Old Testament. It is in the Bible. So once अगर अच्छा से बड़ा प्रचारक मेरा जैसा अगर इस सत्य को नहीं जानेगा तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सब गोलमाल प्रचार ही करता है और सुनने वाला हाँ बहुत अच्छा प्रचार किया, बस मैं करने पड़ेगा। हाँ वो हाँ है तो अभी है, क्या करेगा? क्या यीशु मसीह पाप के लिए नहीं मरा? क्या यीशु मसीह जिंदा नहीं हो गया? हम लोग पिछले संडे पढ़ रहे थे ना, कहां से पढ़ रहे थे? अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ तो अभी भी पाप में हो तुम लोग, बोला हम लोगों को पता है। अगर यीशु मसीह जिंदा हो गया, हम सब लोग जानता है जिंदा हो गया, विश्वासी लोग विश्वास करता है और जानता भी है। तो बाइबल बोलता है यू आर नो लॉन्गर इन योर सिन, आप आपके पाप में नहीं हो। बोले मैं मेरे पाप में नहीं हूं, यीशु मसीह मेरा
जिंदा हो गया। पुराना नियम के अनुसार पापी है भाई पापी है, नया नियम के अनुसार धार्मिक है भाई धार्मिक है, क्योंकि यीशु जिंदा हो गया। अगर यीशु जिंदा हो गया तो विश्वासी लोग पाप में नहीं है। कहां पर पढ़ा था हम लोग ये? पहला कोरिन्थी 15:17 में पढ़ा था। इसको लिख लीजिए। हाँ, यूट्यूब में मिलेगा, अभी बोल रहे ना। अगर लिखना है तो लिख लीजिए। पहला कोरिन्थी 15:17। यस, देखिए। तो बताइए, यीशु मसीह अगर जिंदा नहीं हुआ तो आप लोग पाप में हो, तो आप लोग का विश्वास गलत है। देखिए, जो लोग पापी है भाई पापी है बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है, वो लोग पुराना नियम में है, मतलब ओल्ड कवेनेंट में। कवेनेंट 2-3 है। हमने शुरू में क्या बोला? ईदन बगीचे में 2 पेड़। एक पेड़ क्या है? बुराई और भलाई का ज्ञान है। गुड एंड इविल का नॉलेज का 3 है। उसको अभी भी लोग खा रहा है। पापी है भाई पापी है। शरीर में देखता है हम पापी है भाई पापी है। माइंड भी पापी है भाई पापी है। तो क्या करता है पुराना नियम में? पुराना नियम में क्या बोलता था? एक नामान जो है, कुष्ठ रोगी हुआ था ना, लेप्रोसी, was लेप्रोसी, नामान ना, was a treasure or somebody, minister of ना one king ना, नामान, ये घोर का बीमारी था, लेप्रोसी। क्या करना पड़ता था? उसके मालकिन के वहां एक इजरायली छोटी सी लड़की थी काम करने वाली। उसने कहा जाओ इजराइल में, वहां पर एक प्रोफेट है, उसके पास जाओ, वो बीमारी अच्छा कर देगा आपका ना। पुराना नियम में क्या करता था? प्रोफेट के पास जाना पड़ता था बीमारी अच्छा होने के लिए। अभी लोग क्या कर रहा है? बीमारी अच्छा होने के लिए प्रोफेट लोगों के पास दौड़ के जाता है, अच्छा करो हमको, अच्छा करो। दिल्ली में हमको एक बहन ने बोला, हम जो जाएगा 10,000 दे देगा पास्टर को, प्रार्थना करने के लिए बोलेगा। हाँ, हो गया छुट्टी। मैंने कहा आपका हो गया छुट्टी। तो ये लोग अंधा है अभी भी। ये लोग मसीह में क्या है? क्रिश्चियन है मगर अंधा है। ये लोग स्वर्ग कभी जाएगा नहीं, क्योंकि गलत विश्वास में है। ये लोग नया नियम में आया नहीं, ये लोग अभी पुराना नियम में है। देखिए, मैं एक ना क्या बोलूं मैं, हाँ इंग्लिश में क्या बोलता है? रिवोल्यूशनरी। मैं एक रिवोल्यूशनरी हूँ। क्या बोले? रिवोल्यूशनरी क्या बोलता है हिंदी में? क्या बोलता है? क्या बोलता है? उग्रवादी। देखिए, मेरा कॉलिंग ही वैसा है। 97 में प्रोफेसी आया। मैं भी प्रोफेसी में विश्वास करता हूँ, मगर हम लोग प्रोफेसी ढूंढने के लिए नहीं गया था, प्रोफेट के पास नहीं गया था। हम लोगों ने पति पत्नी हम लोगों ने मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था, और मीटिंग अटेंड करने के लिए उसको बुलाया था। इतना लंबा सूरा रिकॉर्डिंग करके दे दिया प्रोफेसी। वो सीडी में था, अभी नहीं है, रिकॉर्डिंग आवाज में नहीं है ना। मेरे दिमाग में है। बोलता है यार, हाँ यार समझ। तो बोलता है देयर आर कंफ्यूजन, डिसऑर्डर एंड डिस्प्यूट। कंफ्यूजन, यू शैल गो एंड सेट थिंग्स राइट। खतरनाक काम दिया प्रभु ने मेरे को, हम लोगों को, मेरे को सिर्फ नहीं, मेरे वाइफ भी है। खतरनाक काम दिया 1997 में। आज से कितना 32 साल पहले की बात कर रहा हूं। देखिए, मेरा कॉलिंग है असाधारण है। क्या करेंगे हम क्या करेंगे? परमेश्वर का काम करना पड़ता है। देखिए, तो बोला पुराना नियम में जो है, आपको प्रोफेट के पास जाओ। अभी बोलता है तुम हीलिंग करो, तुम प्रोफेसी करो, आपको बोलता है। मुर्दा जिंदा करो, आपको बोलता है। प्रोफेट के पास जाओ, ऐसा नहीं बोलता है। उसके पास जाओ तो ब्लेसिंग पाएगा, नहीं बोलता है। क्या इंग्लिश में? गो देयर, गो टू द प्रॉफिट।
then you shall be blessed. सही था पुराना नियम में, but after the cross, New Testament has come. God has removed the old covenant. Now anybody who follow the old covenant, the rule of Ten Commandment, double curse आएगा. Double curse. People are double cursed. I've been writing this in Facebook publicly. Lakhs of people internationally, people are reading my uploads. मेरा प्रचार को. बिग मिनिस्ट्री वाला भी पढ़ रहा है, छोटा मिनिस्ट्री वाला भी पढ़ रहा है. हाँ, मैं लिख रहा हूँ फेसबुक में, घोषणा करता हूँ. विश्वास नहीं तो आप पढ़िए, फेसबुक में आ जाइए, कितना लिखा मैंने. हाँ जी, देखिए इंग्लिश में. तो अगर आपको नहीं आता है तो इंग्लिश को कॉपी करके इसमें कहा है ना, ट्रांसलेटर है ना, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, डाल दीजिए इंग्लिश, पुट इंग्लिश, देन यू गेट हिंदी. सो यू रीड इन हिंदी और इट इज इन हिंदी, देन यू पुट देयर एंड देन यू गेट इन इंग्लिश. सो वेरी इजी. तो ऐसा है. सो क्या है? सो old covenant is so hard to follow, and people are, if anybody say I'm following Jesus, he's not following the Christ, he's following old covenant. People are, they give their comments, I follow Jesus. You are following Jesus' rule. Before the crucifixion, Jesus gave the rules. You follow, you are not following the Christ. Christ, after the cross, he became Christ. He became quick in spirit. He became quick in spirit. You want to read? If you want to record it, you have to write it down. 1 Corinthians 15, 48, 45, 48. He became quick in spirit. After the cross, after the resurrection, he became quick in spirit. आपको जिंदा करने वाला आत्मा बन गया वो. He became Christ. He became Christ. He is not Jesus. He became Christ, the Redeemer, the quick in spirit. That he became grace. Jesus is the grace. The people are scared of grace. ये grace वाला. They don't know Christ. तो हमको प्रभु ने ये विषय दिया. इस विषय में हम लोग अभी सीख रहे हैं. प्रभु सिखाता है. We learning. संसार को हिलाने के लिए थोड़ा तो हिलाना होगा. ज़्यादा हिलाएंगे. आप लोग सब तैयार होंगे तो हम हिलाएंगे दिल्ली को. आप लोग को तैयार होना होगा. हम अकेला नहीं सकते हैं. आप तैयार हैं? You are ready? If you are equipped, if you are equipped, once you are equipped, so we are becoming stronger and stronger, a stronger nation. प्रभु बोलता है, वो छोटे झुंड, अभी तुम लोग छोटा हो, अभी तुम लोग 1000 जन हो जाएगा. देखिए हम लोग 1000 जन होने के लिए बाकी थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा. इसलिए अब अगर इधर उधर रनिंग हियर एंड देयर, स्टॉप देयर, लर्न. देखिए it's such a powerful. देखिए, there's a Mount Sinai. There's 2 mountains in the Bible. Mainly there are mountains and many rivers. We're not talking about this, but we're talking about the law and grace. Law was given on Mount Sinai. Law, the 10 Commandments was given on Mount Sinai through Moses. देखिए, so Bible बोलता है, Bible speaks, they don't go to Mount Sinai now. You shall die. मर जाएगा, जरूर मर जाएगा. You shall die. Mount Sinai में जाएगा तो मर जाएगा. देखिए कोई भी teaching based on that law, based on that old covenant, knowingly, unknowingly, ये लोग क्या करेगा? ये लोग मर जाएगा. वो लोग का आत्मा तो मर जाएगा, मन उन लोग का सोच मर जाएगा, होपलेस हो जाएगा. दे विल मिस द पॉइंट. पीस हम लोगों ने बोला अभी, कहाँ पर बोला? 37 का, आइजा 37 का 17 में पढ़ा, परफेक्ट पीस. 36 का उसमें भी बोला 6 में का परफेक्ट पीस. इफेक्ट ऑफ राइचियसनेस इज पीस. क्या बोला था 17 में, बहुत अच्छा बोला. इसको बार बार याद करिएगा. अभी हमको उतना परफेक्टली याद नहीं, मगर परफेक्ट पीस, टोटल पीस इन राइचियसनेस आपको देगा. आइजा 17 का कितना था? 32 का 17. उसको बार बार याद करिएगा आज शाम को.
रात को घर चर्च से जाने के बाद, तो परफेक्ट पीस वो लोग एंजॉय नहीं करेगा, टोटली लॉस्ट हो जाएगा। तो ये लोग विश्वास में ये अच्छा है, द गुड पीपल, प्रीचियस पीपल, मगर ये लोग गलत। बाइबल में क्या है? 2 पैर है, लो एंड ग्रेस। ईदन बगीचे में 2 पैर है, ट्री ऑफ गुड एंड नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, और ये दूसरा क्या है? ट्री ऑफ लाइफ। ये लोग गुड एंड इविल से खा रहा है, इसलिए गुड एंड इविल हिसाब किताब करता रहेगा, एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग। बच्चा लोग भी इधर उधर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। देखिए, तो मगर यहाँ पर जब देखिए, इसीलिए अभी हमको बाइबल सुना, बाइबल सारा याद करने से नहीं होगा, याद करने से अच्छा है, मगर उसमें ट्री ऑफ लाइफ को भी जानना है। देखिए, अभी माउंट सिनाई बात किया, और माउंट सिनाई बात किया, वो जाके मरेगा। और दूसरा पर्वत है माउंट जायन में जाएगा, वहाँ पर जाएगा। दैट मीन्स उसमें विश्वास करेगा। If you believe in Christ Jesus, if anyone believe in Christ Jesus, so you should cruise पर मर गया, सीधे कर दिया। क्या सीधे किया? आपको मालूम है, हम बार बार उसको बोलता है, क्या सीधे किया? He removed that, he fulfilled the law, he fulfilled the 10 commandments। ना, एक अमेरिकन ग्रुप में बोल रहा था, हम जो धार्मिकता में हो, हम जीने के लिए कुछ करता, अरे हो गया आपका। बाइबल बोलता मैंने बोला, उसको दिमाग उसका गड़बड़ कर दिया मैंने। बोले रोमन 3:23 नहीं जानता है, सब लोग पापी है, जितना भी कोशिश करो पापी है। एवरीवन इज सिनर, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू लिव राइचियस, यू विल स्टिल रिमेन सिनर। ऐसा बोल दिया, दिमाग खराब हो गया। अमेरिकन ग्रुप में था, तो किसी का भी दिमाग खराब कर सकते हैं आप, क्योंकि उनका दिमाग खराब है, इसलिए आप दिमाग और भी खराब कर दो, तो क्या करेगा? हो देते बिकम मोर वर्स ना। तो सत्य बाद में दे दो, ये है सत्य। तो हम क्या करेगा? व्हाट शैल वी डू? देन यू टेल द ट्रूथ। पहले दिमाग को चकरा दो उनका। देखिए, ओबानिया 1:17 पढ़ते देखिए, क्या कितना पावरफुल है। बाइबल बोलता है सिनाई में बच जाओ अभी ना। अब लोग एक्सोडस में हम लोग दे सकते हैं उसको ना, गूगल में खुद भी निकाल सकते हो ना। डोंट गो टू द माउंट सिनाई, गॉड हैज पुट डेथ देयर, मृत्यु दे दिया। और नया नियम में बोलता है कोई भी, उसमें पुराना नियम कोई भी जाएगा उसमें मर जाएगा, जानवर हो या इंसान हो। इसलिए नया नियम में क्या बोलता है? कोई भी प्रार्थना इस पुराना नियम के अनुसार करेगा, अभी गॉड विल नॉट रेस्पेक्ट इट। हिब्रू 10:8 में है, हिब्रू 10:8 में है। नियम पूरा इसलिए देखना है। ये जो प्रार्थना अच्छा कर रहे हैं ना, लोग लंबा प्रार्थना कर रहे हैं ना, बहुत मर के प्रार्थना कर रहे हैं ना, बहुत रो के प्रार्थना कर रहे हैं ना। अब हम सोचते थे बहुत आत्मिक है, अब जानता है हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। इसको पसंद को जाने का, हाँ इसका प्रार्थना कैसा प्रार्थना है। देखिए, कोई भी प्रार्थना बेस्ड ऑन द लॉ, व्यवस्था के अनुसार कोई प्रार्थना रो के करेगा, रात भर भी करेगा, घंटों करेगा, 24 घंटा भी करेगा, बेकार है। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर शैतान निकालेगा, बीमार भी अच्छा होगा, वो सब हिसाब नहीं होगा, क्योंकि वो गलत प्रार्थना है। गलत प्रार्थना प्रभु एंटरटेन नहीं करता है, गॉड नेवर एक्सेप्ट। क्योंकि 8 में आप पढ़ा, 7 में बोला, लो आई हैव कम टू रिमूव द ओल्ड टू एस्टैब्लिश द न्यू। देखिए, God has come, Jesus has come, manifested, and He has removed, He has fulfilled, He obeyed and who fulfilled the law. No one is righteous, but Jesus is righteous. Only Jesus is righteous. He fulfilled the law. He removed the law. He removed all the principalities and powers. सारे शैतान के कामों को नाश किया। Colossians 2:14 को हम लोगों ने बार we have been discussing about it. Colossians 2:14 and 15. How did God destroy the works of devil? हम लोग पढ़ते हैं, yes, God has destroyed the works of devil. 1 John 3:8. Jesus has manifested into this world and have destroyed the works of devil. Yes, मगर कैसे? If I ask anyone, किसी को भी मैं पूछता हूँ, जवाब नहीं दे सकता है। ठीक है, ये तो किया है, बट कैसे किया है?
How did he remove the principality and the power? अरे इसको जाने का दम ना, you know the gospel, नहीं जानता है तो हवा में तो कोई भी कर सकता है। कोलोसी 2 का 14-15। आप लोग, इसीलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, इतना सीखेंगे ना आप लोग, पावरफुल होता जाएगा। देखिए हम लोग ओबादिया 1:17 में है अभी। देखिए परमेश्वर ने क्या किया, नया नियम को लाया। अभी नया नियम कितना पावरफुल है। देखिए पुराना नियम में कर के मर के रात भर रगड़ो, प्रार्थना करो, हफ्ता भर प्रार्थना करो, फिर लगता है नहीं पूरा नहीं हुआ, फिर अब 40 दिन का बैठेगा तो सही होगा। 40 दिन बैठेगा फिर लगता है नहीं, और 40 दिन और 40 डेज, another 40 days I have to go। हम लोग गांव में 40 days करके साइकिल भी नहीं चला सकता है। शरीर खत्म कर, his body is finished, his strength is finished, no more strength। दूसरा के साइकिल के पीछे कैरियर में he has to sit in the behind the carrier, बर्बाद कर दिया। इतना अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी लोग ज्यादा करता है अच्छा होने के लिए, मगर कोई भी अच्छा नहीं हो। हमने बोला इसीलिए इंटरनेशनली मैं बोल दिया, यू स्टिल रिमेन सिनर। भाई क्या करोगे, व्हाट यू डू। गलत शिक्षा मार देता है, खत्म कर देता है आपके जीवन को, जिंदगी को। और 1:17 पर ही देखिए कितना पावरफुल नियम। गॉड इज ब्रॉट दिस माउंट जायन में जाओ होता है, वहां पर जाओगे तो देखो क्या होगा। फर्स्ट क्या होगा, डिलीवरेंस, सल्वेशन, हीलिंग, मिरेकल, ब्लेसिंग। योर जनरेशन, आपके बच्चे लोग क्या होगा, बड़ा आग होगा, फ्लेम होगा, देश को अधिकार करेगा। इतना ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। अब 1:17 से बोलिए। वेरी इजी टू गेट ब्लेसिंग्स, वेरी इजी। पढ़िए इंग्लिश में। ओबादिया 1:17, स्टार्ट फ्रॉम 1:17। हिंदी में ओबादिया है, ओबादिया बोलता है एक अध्याय का 17 से पढ़िए, 17, 18, 19 ना पढ़िए। देखिए इतना पावरफुल, ये गॉस्पेल ऑफ ग्रेस पावरफुल है। इसको ही क्या करते हैं लोग ना, बंद कर देना चाहता है। इसलिए आज तक यूट्यूब मेरा 603 है अभी तक। देखिए लोग पसंद नहीं करता है, बोलता है people those who are drinking the habit of old wine, they never drink the new wine। But on Mount Zion there shall be deliverance, and there shall be holiness, the house of Jacob shall be वाह, देखिए हाँ, इन जायन, माउंट जायन हम लोगों ने बोला, एक्सोडस से हम लोग पढ़ा नहीं, अभी निकालने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए ना 19 का कहाँ पर है ना, डोंट गो टू द माउंट जायन, वहाँ पर मिट्टू रखा है। अभी क्या है, जायन में क्या रखा, गो टू द माउंट जायन, दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। फिर से पढ़ लीजिए, फिर से। But on Mount Zion there shall be deliverance। there shall be deliverance। आपको हीलिंग चाहिए, मिरेकल चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, ओह कर्स से छुटकारा चाहिए, सेकंड में, as soon as you go there, you stand there in faith, these things are going to happen। You don't need to say, oh दीजिए प्रभु, oh दीजिए प्रभु, oh दीजिए प्रभु, नहीं, you don't need to beg। बोले मेरे तरह हंसी, ब्लेसिंग, यू आर गेटिंग ब्लेसिंग, तो हंसना पड़ेगा ना। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़े इसी को, आज दिन भर इसी को पढ़ते हैं। But on Mount Zion there shall be deliverance। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस, and there shall be holiness। there shall be holiness। पवित्रता चाहिए प्रभु, आप मांगता है ना, मिनट में, सेकंड में, when you are there, when you are in this faith, holiness, God is your holiness। फिर थर्ड सेंटेंस, the house of Jacob shall possess their possessions। देखिए हाउस ऑफ जैकब, और जैकब का, अब्राहम का ब्लेसिंग, जैकब का हाउस देखिए घराना, ब्लेसिंग, you shall inherit blessing, your generation will inherit blessing। हालेलुया। इसलिए बुद्धिमानी क्या है, be there ना? उसमें, उस विश्वास में, relax, stand there in the Mount Zion, then all these blessings will come unto you। You don't need to beg, you need to just learn, listen this faith,
Faith comes by hearing, no option. Faith comes by fasting नहीं बोला. Faith comes by hearing. You need to keep coming. आपको चर्च में आना है. Hallelujah. The same thing I have to do. I have to be there. I have to stand there. I have to say the word. I have to read the word. I have to meditate the word. No, and confess, Lord. मेरा सब कुछ तू है. I have to believe. कभी भी चिंता कहाँ से आएगा? Blessing कहाँ से आएगा? ना कभी ऐसे ना sometimes our mind ना tries to drag us away, but we have to set our mind there. दिल को परमेश्वर के लिए रखना है. Lord, you are my स्रोत, जीवन का स्रोत. You are my source of life. You are my source of living. You are my source of provision. Bible बोलता है God has blessed us with all the spiritual blessings and heavenly blessings in Christ Jesus. So see yourself. You are forgiven. You are washed away. Your sins are washed away. The gospel बोलता है your sins are washed away. Father God has just put all your sin, the sin of the world, to Jesus, who knew no sin. उसको पापी बना दिया, मार दिया. आपने उस पर जीसस से बोला. परमेश्वर आपको डिलीवरेंस दे दिया, धार्मिकता दे दिया, पवित्रता दे दिया, ब्लेसिंग दे दिया. बोलता है you are now looking at Jesus. You are स्टैंडिंग ऑन माउंट जायन. अभी ओवादिया में जो है 1:17 में बोला वहां पर जाओ. नाउ यू आर देयर. बोला अभी मैं आई एम इन माउंट जायन. बोले आई एम इन माउंट जायन. तो आपको इसलिए इसको याद करिए और वरी को भगा दीजिए. कैसा और योर वरी. देखिए सारा दूर हो जाएगा. मैं ऐसे दूर करता हूँ. इसीलिए मेरा साउथ अफ्रीका का जो ना पास्टर ना फॉरेनर है दुबई से ना वो बोलता है हाउ यू माय ब्रदर हाउ यू स्टे सो स्ट्रांग ऑलवेज यू हिला रहे सबको. बोला हाँ कैसे बोलता है. बड़ा बड़ा पास्टर लोग. वो मेरा फेसबुक फ्रेंड भी नहीं कहा. मैं तो जानता था. मैं सोचता था ये मेरे को कहाँ देखता होगा फेसबुक में. चुपचाप देख रहा है, वो फॉलो कर रहा है. So why am I like this? So I just got this मसाला मिल गया मेरे को. किंगडम का वो चाबी मिल गया. वो हालेलुया जो पावर है इसमें. जस्ट सत्य का ज्ञान हो गया. No, I don't care. I don't care for anything. हम बोला ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. कल वायरस लोग आए थे ना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी करेंगे ना. गॉड विल प्रोवाइड ना. हमारा अपना घर दिल्ली में भी होगा ना. हम दिल्ली से होगा हजर बोलने जाता रहते जल्दी होगा. बोला हजरत ने वाह वाह हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ना. जल्दी हो जाएगा हमारा घर, अपना घर होगा दिल्ली में. हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि परमेश्वर हमारा स्रोत है, सब कुछ है. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर ने दे चुका है. सो व्हेन वी कन्फेस दैट जल्दी हो जाएगा दिल्ली में अपना घर. क्योंकि we are bringing that down. We are blessed. We are already in the spiritual realm. You are blessed, my brother. You are already in the spiritual realm. You are there. Your position is there. You are in Christ Jesus. Your position is there. Nothing can hold you back. You are already blessed there. When you are agreeing with this word, you are bringing it down. Your heart, your mind, you are bringing it down. So you just rejoice. Trust the Lord. तू मेरा सब कुछ है Lord. You want to cry, you cry, Lord. Sometimes I cry. Just 2-3 days ago, I was just weeping. अभी मैं बोला Lord, तू मेरा सब कुछ है. You my everything. I love you. तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहा. देखिए sometimes you feel crying. अच्छा है, रोइए. बोले प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. You are my daddy. संसार का डैडी तो फेल होता है चला जाता है ना. ये तो नेवर फेलिंग डैडी हो, मेरा स्रोत हो.
Hallelujah. You are my everlasting Father. You are my strength. You give me new strength. Saturday maybe you are giving me new strength every day. Hallelujah. You are giving me hope of glory every day. So मेरे पास तो है, तो सारा संसार है. Nothing can bother me. Hallelujah. So so you have to develop this thinking. You have to be established. आपको क्या है? इस विश्वास में in Christ you have to be established. In Christ resurrection power. In Christ you are righteous. In Christ you are forgiven forever. We are one with God. In Christ you are established in righteousness. You are established in righteousness already. Like I am established in righteousness. बोलिए. I am established in righteousness. जोर से बोलिए इसको. हाँ, बाकी सोच आप ना ऐसा बोलेंगे, इसको बोलिए, जोर से बोलिए. Shout. I am established in righteousness. I am in Christ Jesus. I am in Christ Jesus. I am established in righteousness. His righteousness. His righteousness has become my righteousness. अरे यीशु के आने से पहले डेविड ने ये बोला था, His righteousness has become my righteousness. मैं सोचता था, अरे वाह, His righteousness has become my righteousness. डेविड ने स्वीकार किया. अरे डेविड ना उस समय पुराने जमाने ओल्ड टेस्टामेंट का था, सोलोमन का पिता, Solomon's father David the king. He was under law, but he saw Jesus. अरे ऐसा समय आएगा, परमेश्वर किसी का पाप नहीं पकड़ेगा. He doesn't condemn you. डेविड ने देखा, समय आएगा. Now फादर क्या किया? यीशु को सारा पाप दे दिया. अभी आपको पापी नहीं बोलता है. बाइबल देखिए, दिस सत्य है, यही गॉस्पेल है. आई एम टॉकिंग अबाउट ना 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21 बोलता है, हु न्यू नो सीन. यीशु कभी पाप को जानता ही तक नहीं था, किया तो नहीं है मगर जानता भी नहीं था पाप को. उसी को पिता ने क्या कर दिया? सारा संसार का पाप उसको दे दिया. पापी करे उसको मरवा दिया, तो ले गया सारा पाप. गिफ्ट के कैसे ले गया? बोले कैसे ले गया? यीशु मसीह संसार का पाप कैसे ले गया? बोलिए ना, अभी जवाब दीजिए, कैसे ले गया? अपना बलिदान से या करेक्ट? बोलिए और बोलिए, कैसे ले गया? हाउ डिड जीसस टुक ऑल द sin of the world? So provoke your thoughts, no? So that you can remember it whole life में, आप जिंदगी में you will never forget it. बोलिए, हम इतना में ख़त्म करेगा. आप लोग का रिजल्ट रिप्लाई लेने के लिए आगे प्रचार नहीं करेगा. मतलब 100% टू द पॉइंट आना चाहिए. सब करेक्ट होता है, ऐसा डरो मत जो आपका गलत होगा, वो किसी का आंसर गलत नहीं होगा. बोलिए, सबको बोलना होगा. अभी मैं बोलो, ये संडे स्कूल है. मैं स्कूल टीचर था ना. हाँ, ये क्लास वर्क है. क्लास वर्क. बोलिए, कैसे ले गया? हाउ डिड गॉड गिव all the sin of the world to Jesus Christ his son? कैसे दिया? बाइबल बोलता है, who knew no sin, he never sinned like us. कैसे ले गया? हाँ, इसलिए तो मैं कितना बार प्रचार किया, इसी को बार so many times, hundreds of times I have been preaching this. Should I cry, weep here because you are not listening to my preaching? Or should I love?
या बोलिए, बोलते रहिए, कीप सेइंग, कीप सेइंग। मेरा प्रार्थना है आज से ये आपके इन योर हार्ट इट विल बी एस्टैब्लिश, यू विल नेवर फॉरगेट इट। या प्रेम किया, यस, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, यस, उसने प्रेम किया, he gave his son, yeah, so that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life। कैसे दिया, हाउ, कैसे दिया, हाँ, इतना समय लगा, बचपन से छोटा से in childhood ना, she is with us in Guwahati, so yes, thank you Martina for saying that। गिफ्ट के रूप में बोलिए, गिफ्ट क्या है, बर्थडे में आने से क्या देता है, चॉकलेट देता है, गिफ्ट, उसके लिए क्या बोलना पड़ता है, थैंक यू, गिफ्ट के हिसाब से। सब इसको थियोलॉजी वर्ड में बोलता है इम्प्यूटेड, बोलता है ऑल द सिन ही इम्प्यूटेड टू हिज सन जीसस क्राइस्ट, सारा संसार के पाप को उसको दे दिया, गिफ्ट के रूप में दे दिया। सारा संसार का पाप, देखिए ये जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, preachers they preach that what you have repented he has forgiven, he has taken away, na, for this is the people, our leaders and me, including me, I have been preaching, like what you have repented God is forgiven, tomorrow sin is not taken away। See another point, अभी gift बोले, gift will be, gift बोले, gift never forget again, gift as a gift ना, he has given, लो बेटा ले लो, तुम मर जाओ, मरवा दे इसको। और बाइबल बोलता है जो लोग, हम लोग धार्मिकता का काम, अच्छा काम किया ही नहीं था, सारा बदमाश था ना, इंक्लूडिंग में, बाइबल बोलता है सब पापी है, भाई पापी है, रोमन 3:20। जब हम लोगों ने देखा यीशु मेरा पाप ले गया, विश्वास किया, तुरंत बाइबल बोलता है हम बदमाशों को क्या कर दिया, गॉड हैज गिवन अस गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। देखिए क्या दिया, गिफ्ट दिया, क्या मिला आपको, गिफ्ट मिला, रहेगा अभी ये by us next Sunday, how many of you will remember it, I don't know, जो लोग भूल जाएगा उनको चॉकलेट मिलेगा, if anybody can forget I'll give you 5 रुपए का चॉकलेट लेके आऊंगा, मैं यहाँ पर दे दूंगा, whoever can forget। बोले गिफ्ट, जब हम पापी लोग है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कोशिश भी नहीं किया धर्मी होने के लिए, हमने यीशु से बोला, just said Jesus, you are my redeemer, you are my sacrifice, Father God has imputed all the sin of the world, remember sin of the world, सिर्फ आपका नहीं, only not your sin, only not your repented sin of the whole world, God so loved the world, whole world का पाप यीशु को गिफ्ट के रूप में दे दिया। और आपको हमको जब ये जीसस हृदय से यीशु ना, तू कितना अच्छा है ना, मेरे जैसे पापी को धार्मिक, when you start thinking, जब आप सोचेंगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा, शांति आएगा, you understand it, then आपको hope of glory आएगा, hope of glory I'm talking from Romans 5:1-2, hope of glory, when you understand this, the gift of righteousness, the justification Bible बोलता है, theologian word justification is, that means you are made righteous, you are not righteous, you were sinner, now you are no longer sinner, you are made righteous, since you have given your heart, you have given your faith in Jesus Christ, now standing in the Mount Obadiah, so Mount Obadiah, Mount Zion, Obadiah 1:17 में बोला है,
So you are standing on Mount Zion. Now you are declared righteous. Now you have blessing of Abraham. Now you have been redeemed. पाप से आपको छुटकारा मिल गया, blessing मिल गया. Your generation will be blessed in the land. Hallelujah. Praise the Lord. इसलिए आपको मन में don't try to struggle yourself. सोचेगा कुछ नहीं मिलेगा. विश्वास करो सब कुछ you draw and never ending blessing you draw from heaven. And earthly blessing आता जाएगा. You become successful. You become healthy, stronger in the body. Quick in the spirit. आपको body में resurrection power काम करेगा. Oh, I have been healed, I am righteous. आपको 1000 बार नहीं तो 100 बार तो बोलिए. तो क्या है? आपके माइंड को धार्मिकता में एस्टैब्लिश करना है. आपके माइंड को, आपके हृदय को यीशु में स्थापन करना है. When you are established there, nothing can आपको नहीं हिला सकता. Nothing can shake you. You are standing on the rock of salvation. Jesus Christ is our rock of salvation. The rock cannot be shaken. You may be shaken, body. No, but the rock you are standing, salvation you have got received, वो हिलेगा नहीं. You are always righteous. If you can make mistake, if you still sin also, remember you are made righteous because of your faith, not because of your obedience. देखिए, आपने अच्छा जीवन जिया इसलिए धार्मिक है? नहीं बोले नहीं. प्रभु अच्छा है इसलिए. God is good. He has given you the gift. Gift is gift. You are justified. See them. इसलिए बोलता है hold it. That confident. विश्वास को, confident को पकड़ो. Declare yourself. करता जाएगा. आपके मन को नहीं हिला पाएगा. आपके हृदय को विचलित नहीं. Your heart will not be troubled. You have faith. अब आगे बढ़ते जाएंगे. ये है विश्वास. तो क्या है? शैतान भी आउट. आप बोलेगा शैतान आउट. बीमारी भी आउट. Hallelujah, praise the Lord. Power, heaven's power is working in you. ठीक है? God is good. Hallelujah. All the time. You have learned something? Okay, हाँ. Sin of the world बोल रहा था मैं. Sin of the world. All the sin Bible बोलता है has been given to Jesus Christ. All the sin का मतलब है sin of the world बोलता है बार. और जो योना, John the Baptist, he also when he saw Jesus Christ, he said, "Behold the Lamb of God who take away the sin of the world." देखिए, सारे संसार को पाप को ले जाने वाला यीशु ले गया. बोले यीशु ले गया. Jesus is taking it away. Wash कर दिया by the blood of Jesus. अभी आपको राजा बना दिया. बोलते आपको you are king and prince and queens, princes. We have to establish in this faith. So sin of the world बोलने का मतलब है whole world का sin. Before you are born, before you committed sin, now you are committing sin. Tomorrow you will commit sin. वो सारा पाप भी यीशु ले गया. बोले यीशु ले गया. Jesus has taken. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. When you believe this gospel, you are free from all the sin bondage. आपका डर condemnation से free. You are made righteous. जब ये विश्वास आएगा, इस gospel को नहीं समझने वाला, those who doesn't understand this gospel, they say, ये तो पापी बनाएगा, ये तो पापी बनाएगा. नहीं, ये पापी नहीं बनाता है. ये धार्मिक बनाता है. ये स्वर्ग का पावर उसको देता है. और देखते ये विश्वास रखेगा, बोलेगा, विश्वास को रखेगा, स्थिर करेगा विश्वास को, वो आजाद हो जाएगा. समय नहीं लगेगा. He will be set free. He will be delivered because the power in this gospel, salvation में power है. Hallelujah, praise the Lord. नहीं तो जिंदगी ऊपर रगड़ेगा. क्या करेगा? शांति नहीं है. Struggle. ना क्या है? अंधकार हो जाएगा. पाप देखता है तो अंधकार होगा. hope of glory नहीं है ना. शैतान ही दिखाई देगा. कुछ दिखाई नहीं देगा.
ये गॉस्पेल को छोड़ देगा, और अनदर गॉस्पेल हो जाएगा। अनदर गॉस्पेल क्या करता है? लोगों को और भी पापी बनाता है, श्रापित बनाता है, डबल कर्स हो जाता है। हम बाहर से नहीं बोलते हैं कभी भी ना। गलतियाँ 1:6 से लेकर 9 तक देखिए, उसमें बार बार आप लोग याद कर सकते हैं। श्रापित हो जाएगा। गलतियाँ 3:6 में बोलता है, लेटर किल बट स्पिरिट गिव्स लाइफ। यीशु मसीह ने क्या किया? पापी स्त्री को मैं क्षमा करता हूँ, उसने पश्चाताप ही नहीं किया, बोलते तुम्हारा क्षमा करता हूँ। और दूसरा लोग क्या करता है? तुम पापी, इसको पत्थर से मारना है। देखिए सर, बाइबल को इसलिए जब आप मेडिटेट करेंगे, स्टडी करेंगे खुद, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तो आप खड़ा हो सकता है। यू बिकम लीडर। हालेलुया। देन यू बिकम लीडर। इसको आप स्टडी नहीं करेंगे, कल दूसरा लोग बोलेगा, सब आपका दिमाग खा जाएगा। एंड यू बिकम जीरो, डाउन एंड डाउन, डाउन एंड डाउन, डाउन एंड डाउन अगेन। देखिए इसीलिए स्टडी करिए, बाइबल क्या बोलता है। गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। जब वर्ड ऑफ गॉड को जो पॉल ने प्रचार किया है, देखिए श्रापित हो जाता है। अच्छे अच्छे क्रिश्चियन लोग श्रापित हैं, क्योंकि अच्छे लोग ये लोग हैं। वाई श्रापित? अनदर गॉस्पेल। ओरिजिनल से ये लोग बाहर चला गया है। बोलते हैं हम लोग क्या धर्मी काम किया, इसलिए धर्मी बाइबल बोला। क्या मिला हम लोगों को? गिफ्ट। आ गया अभी ना, दिमाग में अभी स्टैब्लिश हो गया। हम लोग क्या मिला? गिफ्ट। बोले गिफ्ट। इस गिफ्ट को आप लेके रहिए। और मेरे पास ये गिफ्ट है, स्वर्ग का वरदान है। मैं आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। बोलिए आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। आई हैव गिव ऑफ राइचियसनेस। बोलिए जोर से, बोलिए जोर से प्लीज। मैं स्कूल टीचर था, याद करिए, बोलना जरूरी है। आई हैव गिव ऑफ राइचियसनेस। ये गिफ्ट है, हमेशा आपका है। तो इस गिफ्ट में आपको निर्भर करना। यू हैव टू लर्न टू डिपेंड। यू हैव टू लर्न टू लिव इन दिस गिफ्ट, इन दिस गॉस्पेल। लिव देयर, स्पीक देयर, कन्फेस देयर। देन ग्रेजुअली यू ड्रॉ ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ हेवन। स्वर्ग का सारा आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपको क्या चाहिए जिंदगी में? क्या चाहिए? सक्सेस तो, शांति तो, नथिंग ब्रोकन, नथिंग पीस ऑफ गॉड, राइचियसनेस ऑफ गॉड, सब आपको जिंदगी में आपको राजकुमार राजकुमारी बना देगा। आपको बना देगा, बना दिया आपको। अभी आपको लेना है, लेना है, लेना है, उसमें जीना है। और प्रपोज भी है। ओके तो करें, अब मिला कुछ? चलिए देखिए, इसलिए बोले वाला 4 घंटा होना चाहिए, कम से कम 3 घंटा हमारा प्रचार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए प्रपोज रेडी है? यस, हम करेंगे। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड।